بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کا ٹاپک دل کو سکون کیسے ملے، ذہن کو اطمینان کیسے ملے۔ جس انسان سے بھی پوچھے کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آتا، کوئی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں، کوئی اپنے پیشے سے مطمئن نہیں، اسٹوڈنٹ ہے تو وہ مطمئن نہیں، کوئی گورنمنٹ جاب کر رہا ہے وہ مطمئن نہیں، پرائیویٹ بزنس ہے تو بھی مطمئن نہیں، چاہے میرڈ ہے ان میرڈ ہے تو بھی مطمئن نہیں، اولڈ ہے بچہ ہے تو بھی مطمئن نہیں، خاتون ہے تو بھی مطمئن نہیں۔ آپ جس کو بھی دیکھیں ہر کوئی بے چینی کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تو معمولی سی ہوتی ہے، لیکن اس کا حل کوئی نہیں دے سکتا۔ انشاءاللہ آپ کو بہترین حل بتانے لگا ہوں آج، کہ آپ چاہتے ہیں اگر آپ اس بات پہ عمل کر لیں گے، یقین کریں آپ کو کبھی بے سکونی نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو وجوہات بتانے لگا ہوں، جو ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ ریزن آپ کی بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سکون نہیں۔ اور ضروری نہیں کہ کوئی انسان 100% ڈسسیٹسفائیڈ ہو، کوئی 80% ہوتا ہے، کوئی 70% ہوتا ہے، کوئی 60% ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو وجہ ہے بہت بڑی، وہ ہے ہمارا ماضی، ہمارا پاسٹ۔ چاہے ماضی میں آپ نے کچھ ایسا کام کیا جس کا پچھتاوا، یا کوئی کام نہیں کیا اس کا پچھتاوا کہ کاش میں یہ کرتا۔ دوسری وجہ مستقبل کا خوف، فیوچر کیسا ہوگا، جاب ملے گی نہیں ملے گی، کیسی ملے گی، کس فیلڈ میں جاؤں گا، انٹری ٹیسٹ پاس ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، اپنی منزل پا سکوں گا کہ نہیں پا سکوں گا، وغیرہ وغیرہ بے شمار خیالات انسان کو ہر وقت ٹینشن میں مبتلا رکھتے ہیں۔ تیسری بڑی وجہ ہمارا حسد، جو ہمیں بے سکون کر دیتا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر خام خواہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو دولت زیادہ مل گئی اس کی قسمت، عہدہ بڑا مل گیا اس کی قسمت، یا جو اس نے چاہا اس کو مل گیا وہ اس کی قسمت۔ آپ کو آپ کی قسمت مبارک، اس کو اس کی قسمت مبارک۔ لیکن ان چیزوں کا حل بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے تو میں وجوہات پہ آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ چوتھی جو بڑی وجہ ہے ہماری خواہشات، بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، اور وہ خواہشات رکھتے ہیں جو غالباً ان اٹینیبل بھی ہو سکتی ہیں۔ ہم خام خواہ سوچتے ہیں، ان چیزوں کی حصول کی خواہش کرتے ہیں جو شاید ہمارے مقدر میں نہیں لکھی گئی ہوتی، لیکن پھر بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بھی مل جائے، اور اگر وہ مل بھی گئی تو اگلی چیز بھی مل جائے۔ یہ بھی چیزیں ہمیں بے سکون کرتی ہیں۔ اس سے نیکسٹ ریزن ہماری بیماری، چاہے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو جیسے آج کل کرونا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی انسان کو بے چین اور بے سکون رکھتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی وجہ ہمارا علم بھی ہوتا ہے۔ مثلا کسی انسان کو اگر ستاروں کا علم آتا ہے تو وہ پہلے سے اپنے حالات پڑھتا ہے اور بے سکون ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری زندگی میں تو ایسے بڑے بڑے واقعات ابھی آنے ہیں۔ کسی کو اگر دست شناسی کا علم، ہاتھوں کا علم دیکھنا آتا ہے تو وہ بھی بے چین ہے۔ تو بہت زیادہ علم بھی انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ فیوچر میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، تو آپ کی زندگی جو بہت اچھی گزر رہی ہے وہ جہنم بن جائے گی۔ پھر ایک اور بے سکونی کی وجہ جو ہم نے خود پیدا کی ہے، وہ ہمارا ڈرامے دیکھنا، موویز دیکھنا۔ ہمیں چوائس ہی نہیں کرنی آتی کہ ہمیں کون سے ڈرامے دیکھنے ہیں۔ رونے دھونے والے ڈرامے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹریجیکل ڈرامے اور ٹریجیکل موویز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نتیجہ بے سکونی۔ اچھا، ایک اور وجہ ہماری منفی سوچ، نیگیٹو اپروچ۔ جب ہمارے ذہن میں ہر وقت منفی خیالات رہیں گے تو یقین کریں سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ چند ایک ریزنز ہیں جو میجر، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ آپ غور کریں، آپ نے کبھی کسی جانور کو بے سکون نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی وجہ
जानवर हर वक्त नहीं खाते, सिर्फ भूख लगने पर खाते हैं। शेर भी जब भूखा होगा तो शिकार करेगा, वरना उसके इर्द गिर्द बकरियां बकरे फिर रहे हो वो शिकार नहीं करता। दूसरी वजह, और आपको पता हमें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, दूसरी वजह उन लोगों को अपने रिस्क की परवाह नहीं होती कि हमें कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोगों के पास तो अगर कई साल का ज़ख़ीरा हो तब भी हम सोचते हैं कि हमारी औलाद को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम मुतमईन ही नहीं होते, कंटेंटमेंट हमारे अंदर है ही नहीं। तीसरी रीज़न, जानवर कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करते, हमने इतना जमा किया और फिर भी हम बेचैन रहते हैं। चौथी, जानवर जब बीमार हो जाते हैं तो आप गौर करें वो चारा खाना छोड़ देते हैं, और हम बीमार हो जाए तो हम तरह तरह की हम मेडिसिन के साथ साथ खाने खाना शुरू कर देते हैं। हम कभी यखनी पी रहे हैं, कभी सूप पी रहे हैं, कभी और कोई गजरेला खा रहे हैं, कभी क्या कुछ खा रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ नई से नई फरमाइश हमारी जारी हो जाती है। जानवर एक दूसरे से हसद नहीं करते, साजिश नहीं करते। और सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं, जो जानवर के अंदर बहुत बड़ी खूबी है और हमारे अंदर बहुत बड़ा नक्स है, जानवर कभी अपनी रूटीन नहीं तोड़ते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जानवर कहते हैं आज संडे है तो आज मैं देर से उठूंगा। जानवर की रूटीन फिक्स होती है। ये रीज़न है जिसकी वजह से जानवर कभी बेसुकून नहीं होते। अब आपको आ रहा हूं कि हम सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा और इसको अपनाइएगा, अडॉप्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहली वजह याद रखें, जैसी आपकी कंपनी होगी आप वैसे बनेंगे। आप बूढ़े हैं, जवानों के साथ फिरे, आप हमेशा जवान रहेंगे, जवानों जैसी सोच रखेंगे और आपकी सेहत भी बेहतरीन रहेगी। आप बीमारों के साथ फिरेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। आप सेहतमंद हैं और आपकी कंपनी बीमारों वाली हो, आप बीमार हो जाएंगे। सिर्फ कंपनी बदलने से इतना फर्क पड़ जाता है। आप बीमार हैं, आप पूरी की पूरी जवानों से सोबत इख्तियार कर लें, यकीन करें आपकी 50% बीमारी 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, बगैर इलाज के भी ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखिए कि जो शोबिस के लोग हैं, इनमें से मोस्टली आप देखें कि बुढ़ापे में भी जवान रहते हैं। उसकी वजह उनकी कंपनी, हमेशा जवानों की कंपनी में रहते हैं। दूसरा, याद रखें, किसी भी इंसान की नेचर बदलने के लिए पर्सनल ना हो। आप जब भी, क्योंकि नेचर कभी नहीं बदलती, आप दूसरे इंसान की नेचर बदलने के लिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, जब आप ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं तो आप बेसुकून हो जाते हैं, क्योंकि नेचर नहीं बदला करती। इसी तरह अगर आपने किसी को कुछ सिखाना है, हुनर सिखाना है, कोई स्किल सिखानी है, उनकी कोई ट्रेनिंग देनी है, तब भी पर्सनल ना हो। याद रखिए, जिसने सबक सीखना हो ना, वो दीवारों से भी सबक सीखता है, फर्श से भी सबक सीखता है, छत से भी सबक सीखता है, और जिसने ना सीखना हो वो पैगंबरों से भी नहीं सीखता। मसलन दीवारें हमें ये सबक देती हैं कि दूसरों के राज राज रखो, दूसरों की बातें छुपा लो। फर्श हमें सबक देता है कि दूसरों का सहारा बन जाओ, दूसरों के नीचे बिछ जाओ। आजिज़ी का भी सबक देता है और सहारा बनने का भी सबक देता है कि किसी को गिरने नहीं देना। छत हमें सबक देती है कि बारिश से भी दूसरों को बचाओ, धूप से भी बचाओ, चोरों डाकों से भी दूसरों को बचाओ। ये देखिए, हमें सबक देती है ये चीज़ें। यही मैं बता रहा था कि जिसने ना सीखना वो तो पैगंबरों से भी नहीं सीखता। अबू लहब को देख लो, अबू जहल को देख लो, उतबा को देख लो, ये सारे वो लोग उन्होंने पैगंबरों से भी नहीं सीखा। अगला, पॉजिटिव सोच हमेशा सुकून देती है, नेगेटिव सोच हमेशा बेसुकूनी लाती है। आप जितनी सोच अपनी अच्छी करते जाएंगे आपको सुकून मिलता जाएगा। और अगला पॉइंट बहुत जबरदस्त, हकदार को उसका हक दे दो। इसका मतलब ये होता है, आपका दिमाग है ना, दिमाग का हक उसकी अच्छी सोच है। दिमाग को अच्छी सोच दे दो, आपको सुकून मिल जाएगा। दिल को अच्छा ख्याल दे दो, आपको सुकून मिल जाएगा। दिमाग को अच्छी सोच दे दो, दिल को अच्छा ख्याल दे दो, जिस्म को अच्छी ग़िज़ा दे दो, आपको सुकून मिल जाएगा। आपके जो ख्यालात हैं उनको आराम दे दो, आपको सुकून मिल जाएगा। हर वक्त अगर आप सोचते रहेंगे ख्यालात को तो बेचैनी तो होगी। और सबसे बढ़कर आपकी रूह, उसको इबादत दे दो, देखें आपको कितना सुकून मिलेगा। एक बेहतरीन तरीका बताने लगा सुकून का, जो कमा रहे हैं आप उससे एंजॉय भी करें।
याद रखें, कैसे एंजॉय करेंगे? बच्चों से बच्चा बनकर एंजॉय करना है आपने, बच्चों के साथ बड़ा बनकर नहीं करना। बड़ों से बड़ा बनकर एंजॉय करना है, बच्चों से बच्चा बनकर एंजॉय करना है। दोस्तों से महफिल जमा कर आप एंजॉय करो, कभी मेहमान बनकर एंजॉय करो, कभी मेजबान बनकर एंजॉय करो। कभी एसी चलाकर बैठो और कभी ठंडी यानी जो दरख्त है उनकी ठंडी छांव में बैठ के आप एंजॉय करो। कभी बारिश में भी नहाओ, ये नहीं कि आप सारा दिन घर में बैठे रहना है। कभी आप हीटर में बैठ जाओ, कभी धूप में भी बैठो, धूप में भी सेको आप। यानी इस तरीके से अगर आप लाइफ को गुजारेंगे तो आप देखिए आपको एंजॉयमेंट कितना मिलता है। यानी आप गौर करें, आप धूप से भी एंजॉय कर रहे हैं, बारिश से भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों से भी एंजॉय कर रहे हैं, बड़ों से भी। आप रियल लाइफ गुजार रहे हैं। आपने फेक लाइफ खत्म कर दी, फेक लाइफ खत्म कर दी। जो आप चेहरा दूसरों को दिखाते हैं ना, आर्टिफिशियल फेस, वो खत्म कर दे। उसके बाद आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। एक और चीज, बाउसूल और मसरूफ जिंदगी गुजारे। आपको परेशानी इसलिए कि आपके पास टाइम ही टाइम है, तभी बेसुकूनी है, और आपकी लाइफ के उसूल नहीं है। जिंदगी के उसूल बना लो, उसको फॉलो करो, उसको फोकस करो, आप देखो आपको सुकून कितना मिलेगा। ये कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी की आह अर्श तक ना चली जाए, वरना आपकी जिंदगी में तबाही और बर्बादी आ जाएगी। हम हमेशा खुशियां लेने के लिए मेहनत करते हैं, खुदारा खुशियां देने के लिए मेहनत करें। जो मेहनत करे खुशियां देने के लिए करे। देखें, ये जो सुकून, इत्मीनान, ये आपके कदम चूमेंगे। वो आदमी पुरसुकून है जो कनात पसंद है और शुक्रगुजार है। जो खुदा ने दिया उस पर राजी हो, जो नहीं मिला उसकी एफर्ट जरूर करें, लेकिन परफेक्शन का इंतजार ना करें। अपने आप को खुदा ना बनाएं, खुदारा अपने आप को खुदा ना बनाएं। आप खुदा नहीं है। खुदा बनना ये है कि मैं जो चाहूं वो हो जाऊं, जैसा चाहूं लोग वैसा करें, मैं जहां पहुंचना चाहूं वहां पे पहुंच जाऊं, लोग सारे मेरी 100% बात माने, मेरी पूरी कमांड हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं, हर नेचर के लोग हैं। आपको सबके साथ जिंदगी गुजारनी है। समझौता करके जीना सीखें, आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि एक काफिले में बीमार भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, औरतें भी होंगी, जवान भी होंगे, मर्द भी होंगे, हर तरह के लोग होंगे। आपने सबको साथ लेके चलना है। और एक और बताऊं, आप बेसुकून तब है जब आप अपने से ऊपर लोगों को देख रहे होते हैं। जब भी ऐसी परेशानी आती है, आपको तो फलां की दौलत बहुत ज्यादा है, फलां का हुस्न बहुत ज्यादा है, या फलां के घरेलू हालात बहुत अच्छे वगैरह, अपने से कमतर लोगों को देखें। उसके बाद देखें आपको कितना सुकून। आपको होगा या अल्लाह आपने तो मुझ पर मेहरबानियां ही बहुत ज्यादा कर दी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। जब आप इस तरीके से सोचेंगे, अपने से कमतर को देखेंगे, यकीन करें आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। और लास्ट पॉइंट आपको बताता हूं, अगर आपको वाकई जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, मसाइल हैं, आप उनको अल्लाह के पास ले आए कि या अल्लाह ये बड़े बड़े मसाइल हैं, ये मुझसे हल नहीं होते, मेरी तौफीक ही नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, ये मुझसे हल नहीं होते, या अल्लाह तू ही हल कर दे। और आप देखेंगे कि सुकून आप पर बारिश की तरह बरसेगा और आप इत्मीनान, तसल्ली, बल्कि आप पर सकीना नाजिल होगी। उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि पूरी मखलूक खुदा का भला हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।